Good morning, all. Aditi ma'am, are you there in the meeting? Yes. Okay. Is it possible if you can make me a co-host? Yes, ma'am, I have done so. You can please check. I've made you the co-host, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. I got it. Mitu ma'am, shall we start the meeting? Yes, sir. We can welcome our guests with your welcome speech, sir. Okay, so good morning, all. Dear students, it has been already communicated to you that today's session is related to career awareness. I know that all of you are working hard for your career and very concerned for the same. But sometimes, due to lack of awareness about different opportunities, your hard work goes into vain. कहते हैं ना, प्रयास तो सभी करते हैं, परंतु सफलता तभी संभव है जब आपके प्रयास सही दिशा में किए जाएं. तो just to give a right direction to your efforts, we have arranged this session. Our school principal, Mrs. Veena Mishra ma'am, and Vishal sir are very concerned on this issue. And this session can be arranged only because of the initiative of sir and continuous support from ma'am and sir. Thank you, both of you, ma'am and sir, for your support. Today, we have Miss Aditi Sharma with us. Miss Aditi is senior counselor at EduMentor, and in past 4 years, she has counseled more than 50,000 students. On behalf of National Victor Public School IP Extension, I welcome you, ma'am, and I hope that your views will definitely help our students to choose a right path. Now, without taking much time, I invite Aditi ma'am to continue the session. Over to you, ma'am. Thank you so much, sir. Thank you. Thanks a lot. And very, very warm good morning to everyone. And जैसे सर ने बताया कि why it is important कि ये session क्यों रखा गया, and जैसे जैसे changes आते जा रहे हैं, especially when it comes to your college admissions or when it comes to course selection after class 12th, there have been a lot of changes. तो उसी के लिए ये इंटरैक्शन रखा गया है, so that whatever changes have been made, plus जो कोर्सेज बहुत सालों से चले आ रहे हैं उनके एडमिशन प्रोसेस में भी क्या चेंजेस आए हैं, उन सब के बारे में आपको पता चले. And especially class 11th में why it is important in class 11th, because there are certain announcements which have been made in past like 1 week, which actually made even us shocked, because of the reason for students of class 11th, there have been already dates which have been declared for entrance exam that is for your college admissions in 2023. मतलब 2 साल बाद के लिए जो प्रोसेस होने वाला है उसका एग्जाम की डेट आ गई है, एंड उसका जो प्रोसेस है वो पूरा अभी से ही नोटिफाइड हो गया है. और इसी वजह से ये इम्पोर्टेंट होता है हमें ये जानना और ये समझना कि व्हाट आर दी पॉसिबिलिटीज आई शुड हैव और व्हाट आर दी कोर्सेज आई शुड परस्यू, स्पेशली आफ्टर क्लास 12th. बट बिफोर स्टार्टिंग माय इंटरैक्शन, एज one thing I'll make sure, आप मेरे साथ ना जब भी आपको मुझे कुछ पूछना हो या डिस्कस करना हो, you are always welcome through the chat box option. आप chat box option पे मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो, so that कोई कोर्स अगर मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ और आपके फ्रेंड को वो कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है, वो सुन रहा है, और आपने अगर तुरंत उसमें बीच में कुछ बोल दिया, थोड़ा सा chaos हो जाता है. And just to maintain that, I have been using this chat box option for smooth interaction. तो क्वेश्चन के साथ ही शुरू करते हैं आज का ये दिन, आज का ये वेबिनार स्पेशली, कि what is the most important thing for you after class 12th? In case if you have decided, please let me know कि क्या डिसाइड किया है और क्या लगता है 12th के बाद सबसे ज्यादा जरूरी चीज क्या होनी चाहिए. वो कोई कोर्स है, वो कोई कॉलेज है जो तुम्हारे दिमाग में है एंड यू हैव ऑलरेडी प्लान्ड, तो जल्दी से मुझे एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताओ. यू कैन चूज माय नेम इज आदिति एंड यू कैन राइट इट डाउन.
Okay. Graduation, undergraduation, CLAT, very nice. CA, perfect. CA, NIFT, CA, okay. Investment banking, nice. A course which can enhance my practical knowledge, great. Okay, NEET, law. So we have a car designer, great. Okay, IIT Bombay or MIT CSC, if possible, right? Fashion designing, graphic designing, CPA, stock trader, nutritionist, BFA. Okay. So beta, in that case, if some of the students are not able to join, don't worry. Teacher, nice. Okay, so since I'm getting a response, I'm really happy कि आप सब लोग जगे हुए और मुझे अच्छे से सुन रहे हो, क्योंकि ये इंटरेक्शन जैसा मैंने बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है. Before jumping on to the conclusion with courses and मतलब सारे courses बताना, colleges बताना, there is a necessary to define to, especially when you are in your class 11th, it is very very necessary to define कि आपको finally करना क्या है. क्योंकि अगर आपको आपकी गोल पता होता है ना, तब आप अपनी जर्नी तय कर पाते हो. लाइक फॉर एग्जाम्पल, इफ यू हैव टू गो समवेयर, तो आप गूगल मैप्स में अपना डेस्टिनेशन डालते हो और वो एक पार्टिकुलर रूट फॉलो करते हो, फाइनली आप वहां पे रीच कर पाते हो. सो दिस इज व्हाई योर गोल हैज टू बी, मतलब इट शुड बी दैट मच परफेक्ट कि तुम्हें 11th में ही क्लियर हो कि बाद में करना क्या है. सो या beta, the limit is I think it is of 100 only. So this is why others are not able to join. Yeah. Okay. So my question was ki what is the most important thing for you after class 12th? And as rightly said by many of you, of course, एक चीज तो रहती है, that is the percentage, because उसके लिए आप इतनी मेहनत कर रहे हो. You have been in school, you are, some of the students must be taking tuitions, and this percentage also helps you in your there are times जब आप placement में बैठोगे तो वहां पे आपको ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है. प्लेसमेंट में भी परसेंटेज मैटर करता है, लेकिन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज होती है 12th के बाद, जैसा आप ज्यादातर बच्चों ने मुझे स्पेसिफाई किया, कॉलेज नेम. एंड आई एम रियली हैप्पी टू नो कि आपको ये बात पता है ऑलरेडी कि 12th के बाद एक अच्छा कॉलेज इज वेरी नेसेसरी. द कॉलेज जो आपको एक अच्छी प्लेसमेंट देता है, एक ऐसा कॉलेज जिसके टीचर्स बहुत अच्छे होते हैं, जो तुम पे 3 साल अच्छे से मेहनत करते हैं कि 3 साल बाद जब तुम किसी इंटरव्यू में बैठो तो वो 10 मिनट के इंटरव्यू में, वो 15 मिनट के इंटरव्यू में इतना गजब का कर दो कि सामने वाला या तो तुम्हें 10 लाख का पैकेज दे दे, 20 लाख का दे दे, 25 लाख का दे दे. इट कंप्लीटली डिपेंड्स ऑन द इंटरव्यू दैट यू आर गोइंग टू गिव, and that interview will not exceed more than like 30 minutes or 20 minutes. उसमें ही कुछ ऐसा होता है, उसके बाद आपको अच्छी प्लेसमेंट्स मिलती है. और अगर आप एक अच्छे कॉलेज से होते हो तो एक चीज जो सबसे ज्यादा आपके साथ रहता है ना, वो उसका ब्रांड रहता है. Like you are studying in a school which is already one of the you can say a good brand in Delhi. So this is why, just one second, yeah. This is why in case of college also brand is very very important. नॉर्मली जब हम कोई फोन खरीदते हैं तो हम कितने स्पेसिफिक होते हैं ना ब्रांड्स को लेके. हम आईफोन्स खरीदते हैं, हम सैमसंग खरीदते हैं, वन प्लस खरीदते हैं, काफी स्पेसिफिक होते हैं. कपड़ों को लेके हम ब्रांडेड कपड़े खरीदते हैं. तो सिमिलरली व्हेन इट कम्स टू योर कॉलेज ऑल्सो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको ध्यान रखना है कि no matter what happens in my class 12th, but any which ways I do not have to compromise with my college. प्लीज ये दिमाग में अभी से ही रखो, और अगर अभी से रखोगे तभी क्लास 12th के बाद तुम्हें इसमें फायदा मिलने वाला है.
और एक चीज और है कि अच्छा कॉलेज आपको एक प्लेसमेंट देता है विच इज ट्रू, और ऐसा नहीं है कि सबको ही ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट चाहिए होती है, बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि वो पीजी करेंगे, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन करेंगे, अंडर ग्रेजुएशन नहीं चाहते हैं करना, मतलब अंडर ग्रेजुएशन के बाद प्लेसमेंट्स नहीं चाहते हैं। लेकिन पता है प्लेसमेंट मिलने से फायदा क्या होता है? सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी को होता है तो वो आपके कॉन्फिडेंस को होता है। आप ग्रेजुएशन में जब आप 21 साल के हो या 20 साल के हो या 22 साल के हो, और तब अगर आपको कोई कंपनी सामने से ऑफर कर रही है 10 लाख का पैकेज, 15 लाख का पैकेज, 20 लाख का पैकेज, तो उससे क्या होगा? आपको रियलाइज होगा सबसे पहली चीज आपकी वर्थ, आपकी जो अभी तक की पढ़ाई है फ्रॉम LKG टिल योर ग्रेजुएशन, वो कितनी ज्यादा वैल्यूएबल हुई है। आपको आपके कॉन्फिडेंस में सबसे ज्यादा, और आप फील करोगे कि वो बूस्ट हुआ। इसलिए प्लेसमेंट इज वेरी नेसेसरी। एंड ऑफ कोर्स अगर आप किसी एक अच्छे कॉलेज में जाते हो तो ये प्लेसमेंट प्रोसेस आपके लिए स्मूथ हो जाता है, और ये अच्छे से समझते होगे आप लोग, क्योंकि तभी आपने, मेनी ऑफ यू एग्जैक्टली, काफी स्पेसिफिक आपने मुझे कॉलेजेस के नाम बताए। एंड लाइक एक बच्चे ने मुझे बोला IIT बॉम्बे और MIT, तो उसको क्लियर है कि IIT बॉम्बे जाएंगे तो देयर विल बी अ ड्रास्टिक चेंज, first in my personality, second in my learning, and third when it comes to your placements. So this is why a good college is very, very, very important, guys, and please keep this thing in your mind till the end. हाँ, अब एक क्वेश्चन अभी आया है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, मैं उसी पॉइंट पे आ रही थी कि इवन अगर आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी जाना चाहते हो, जैसे लेट सपोज हम IAS का एग्जाम लेते हैं, तो UPSC का एग्जाम इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम इन इंडिया। अब UPSC के एग्जाम का कभी भी स्टार्ट्स उठाओ और स्टार्ट्स को अच्छे से देखो। 8 लाख बच्चा बैठता है, अराउंड 700 to 800 स्टूडेंट्स फाइनली IAS IPS बन के बाहर निकलता है। तो जो बच्चों के रिजल्ट आते हैं उनका कभी बैकग्राउंड देखो। जिस बार जिसकी रैंक 1 आई है, ही इज फ्रॉम IIT, सम ऑफ देम आर फ्रॉम IIM, सम ऑफ देम आर फ्रॉम हिंदू, हंसराज, LSR, एंड बीइंग फ्रॉम अ वेरी गुड कॉलेज, it actually helps them to work in a place जहां पे, or to prepare themselves more accurately, और बहुत अच्छे से वो अपने आप को किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए तैयार कर पाते हैं। अगर IAS का एग्जाम है या UPSC का एग्जाम्स है, उसके लिए भी आप खुद सोच के देखो, आप 3 साल सिर्फ घर में बैठे हो और आपने सोचा कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करनी है, तो लेट मी सिट एट माय होम और 3 साल तैयारी करते हैं, कॉलेज को इग्नोर करते हैं। तुमने कॉलेज को इग्नोर किया, उससे डिसएडवांटेज क्या हुई? तुम जैसे 12th में थे वैसे ही तुम ग्रेजुएशन के बाद रहे। तुम्हारी पर्सनालिटी में चेंज इसलिए नहीं आया क्योंकि तुम्हारे नेटवर्क नहीं बना, तुम एक्स्ट्रा एक्टिविटीज में पार्ट नहीं लिया तुमने। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लाइफ में होती है, किसी भी इंटरव्यू में बैठना, 6-7 लोगों के सामने बैठ के अपने आप को प्रूव करना, वो सारी चीज आप नहीं कर पाए। एंड ये एक बहुत बड़ा और सेटबैक होता है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए जो अपनी प्लानिंग जब करते हैं करियर की, उसमें कॉलेज को स्किप कर देते हैं। तो whether you have to appear for any competitive exam, whether you have to appear for post graduation, please keep this in your mind कि college को skip नहीं करना है, because this is going to help you a lot throughout your journey. तुम खुद अपने आप में डिफरेंस समझोगे जब तुम कॉलेज में जाओगे और पढ़ाई करोगे, और 3 से 4 साल बाद जब बाहर निकलोगे तुम्हें रियलाइज होगा कि तुम्हारी वर्थ कितनी ज्यादा चेंज हो गई है। सो दिस इज व्हाई कॉलेज इज इम्पोर्टेंट। एंड व्हेन आई से कि कॉलेज इज इम्पोर्टेंट, उसके बाद एक और चीज आती है, पता है क्या? दिमाग में बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे अभी एक बच्चे ने मुझे एक बहुत बड़ा सा आंसर लिख के भेजा, वो क्वेश्चन भी हो सकता है, वो क्वेश्चन इज रिलेटेड टू समवॉट जो अभी मैं बताने जा रही हूँ।
कि जब भी हम कॉलेज के बारे में सोचते हैं ना, तो हमारे दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिसकी वजह से हमें कॉलेज नहीं मिल पाता है. लाइक एवरी ईयर वी फाइट अ लॉट एंड स्टिल only 20% students are able to get a good college. Rest 80% struggle a lot when it comes to their college admissions. अब उसका रीजन क्या है और उसका सॉल्यूशन क्या है, वो दोनों चीज मैं आपको आज बताने वाली हूँ. देखो, रीजन तो हम सबको पता है. कई बच्चे, बहुत सारे, मतलब देयर आर मेनी रीजंस. सीट्स कम होती हैं, कंपटीशन ज्यादा होता है, और अगर मैं बात करूं, कट ऑफ बहुत ज्यादा हाई जाती है. तो अगर मैं कट ऑफ्स की बात करूं तो गाइस, दिस ईयर इन 2021 students securing more than 95% are approximately 70,000 plus. एंड ये 70,000 से ज्यादा बच्चे सिर्फ सीबीएसई के थे. इसमें अभी तो मैंने आईसीएसई, स्टेट बोर्ड्स कुछ भी इंक्लूड नहीं किया है. इसका मतलब है ये 70,000 स्टूडेंट्स कितने ज्यादा और हो जाएंगे अगर मैं सबको इंक्लूड कर लूं. तो ये परसेंटेज का जो खेल है, जो हर साल इंक्रीज ही होता जा रहा है, अब उससे हमें, अगर इसको हम एक अपना प्रॉब्लम समझते हैं अगर इन केस, तो इसका क्या कोई सोल्यूशन है? ऑफ कोर्स. और दूसरा सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो है, जो एग्जैक्टली एवरी ईयर, लाइक हर साल जब मैं बच्चों से मिलती हूँ और इंटरैक्ट करती हूँ, और जब उनके कॉलेज एडमिशन प्रोसेस में पूरे टाइम उनको हेल्प करती हूँ, तब मुझे ये प्रॉब्लम तो सबसे ज्यादा लगती है. वो ये है कि मेरी अवेयरनेस, माय अवेयरनेस, जिसकी वजह से, और शायद मुझे अच्छा कॉलेज मिल सकता था क्योंकि मुझे पता नहीं था, इसलिए मुझे नहीं मिल पाया. डिपेंडिंग अपॉन माय परसेंटेज इन माय क्लास 12th, can I still get, I mean, even if I am securing 90% or 85% or 80% in my class 12th, still can I get a good college like SRCC, Hindu, Hansraj, LSR, or maybe a good colleges all over India? अब ये चीज जो अवेयरनेस है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर क्लास 11th. ट्रस्ट मी, ये अवेयरनेस अगर आप ये सोचो कि हम बोर्ड्स के बाद लेंगे, तो ये जो कुछ कॉलेजेस हैं जो आपको एडमिशन दे देते हैं 60, 70, 80% पे, 85 पे, 90 पे, एंड आई एम टॉकिंग अबाउट ऑल द कॉलेजेस. ये ऐसे कॉलेजेस वो हैं जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है इंडिया में, एंड अब्रॉड में भी है कुछ कॉलेजेस की. अब अगर हम ये सोच के बैठे कि बोर्ड्स के बाद देखते हैं, तो मुझे एक चीज बताओ कि जब कॉलेज एडमिशन का प्रोसेस ही अक्टूबर 2022 से शुरू हो जाएगा, तो जब आप सोचोगे कि बोर्ड्स के बाद देखते हैं, तब तक तो सारा खेल खत्म हो जाएगा. और इसी वजह से सिर्फ 20% बच्चों को कॉलेज मिल पाता है, क्योंकि वो 20% कुछ ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं, दे आर एज मच सीरियस फॉर देयर कॉलेज एडमिशन जितना वो अपने बोर्ड्स के लिए होते हैं. तो हमें, इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बोला था, हमें हमेशा गोल ओरिएंटेड पढ़ाई करनी चाहिए. हमें पता होना चाहिए कि ऐसे कॉलेजेस इंडिया में हैं जो अराउंड 60+ यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस हैं, दोज हु आर एज गुड एज SRCC, एंड वहां एडमिशन 50%, 60% पे होता है. और ऐसे यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस के बारे में अगर हमें पहले से पता हो, तो डेफिनेटली हम उसके लिए कुछ ना कुछ करेंगे और फाइनल कॉलेज एडमिशंस के प्रोसेस में हमें प्रॉब्लम नहीं आएगी. लेकिन गलती हम यही करते हैं. और एक और चीज जो हमारे साथ बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो ये है कि अगर हम टेक्नोलॉजी की बात करें तो हम काफी ज्यादा एडवांस हैं. आज हम में से कोई भी नोकिया का कीपैड वाला फोन नहीं यूज करता. आज हम में से कोई भी गाने सुनने के लिए टेप रिकॉर्डर्स यूज नहीं करते, कैसेट्स यूज नहीं करते. आजकल तो इतना ज्यादा स्मार्ट हो गए हैं कि वी आर यूजिंग एलेक्सा फॉर प्लेइंग अ सॉन्ग, और वी आर यूजिंग स्मार्टफोन्स विच आर वेरी वेरी स्मार्ट. तो अगर हम टेक्नोलॉजी वाइज इतने ज्यादा एडवांस हो गए हैं, एंड वी हैव एक्सेप्टेड दैट टेक्नोलॉजी वेरी, आई मीन बहुत अच्छे से, तो जब एडमिशंस की बात आती है या एजुकेशन की बात आती है, तो व्हाई वी आर स्टिल फॉलोइंग दैट ओल्ड रिदम, why we are still sticking to all the old traditional courses, or maybe all courses which are like बहुत सालों से चले आ रहे हैं. Don't you think कि universities like Delhi University,
क्या वो नए कोर्सेज हर साल लॉन्च नहीं करती? बिल्कुल करती है। वो ऐसे कोर्सेज लॉन्च करती है जो मार्केट के ट्रेंड के हिसाब से होता है, लेकिन आज भी हम वो पुरानी चीजों को फॉलो करते हैं एंड देन वी एक्सपेक्ट कि मार्केट हमें एक्सेप्ट कर ले। दैट इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि अगर आप एक ऐसे कोर्स के साथ या ऐसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के ब्रांड के साथ जा रहे हो, तो आपके साथ 10 लोग ऐसे जाएंगे जो आपसे और बेटर करके जा रहे होंगे। तो उसमें आपको अगर उस फेस में अगर आपको सक्सेसफुल होना है, तो प्लीज गाइज अंडरस्टैंड, ऐसे 60 यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेजेस को बोर्ड्स के बाद मत ढूंढना, अभी देखना इज इम्पोर्टेंट। एंड सेकेंड सोल्यूशन, जो हाई कट ऑफ का जो एक प्रॉब्लम है, इवन दिल्ली यूनिवर्सिटी को खुद ये चीज रियलाइज्ड है कि अब हर साल ये 70,000 से ज्यादा बच्चों के अगर 95 से ऊपर आ गए तो क्या होगा? प्रॉब्लम होगी उन सारे बच्चों को, इवन उन स्टूडेंट्स को भी प्रॉब्लम होगी जिनके 96 आ रहे, 97 आ रहे। और इस साल वही हुआ। कॉलेजेस जैसे कि SRCC, हिंदू, हंसराज, इनके फर्स्ट कट ऑफ तो निकले, सेकंड कट ऑफ भी निकला, थर्ड में एडमिशन बंद हो गया। कई कॉलेजेस की तो सेकंड कट ऑफ ही नहीं निकल पाई। जीसस एंड मेरी कॉलेज जैसे है, मिरांडा है, इनकी सेकंड कट ऑफ ही नहीं आ पाई, फर्स्ट में ही एडमिशन खत्म हो गया। और फर्स्ट कट ऑफ निकली कितने की थी? 100 की, 99 की। तो इसका सोल्यूशन खुद दिल्ली यूनिवर्सिटी इज लुकिंग आउट, and this year they have planned for this exam, but due to pandemic it was not able to it was not conducted. But from next year this exam will be conducted as per the Delhi University circular, which is available on their website. So this exam is with this name, Central University Common Entrance Test. इस एग्जाम के आने से आपको और ज्यादा फायदा होगा, ट्रस्ट मी। आप में से वो सारे बच्चे जो प्रॉब्लम फेस कर रहे थे, इवन आफ्टर सिक्योरिंग 95 और 96 आपको कॉलेजेस नहीं मिल पा रहे थे, यू विल बी गेटिंग अनदर चांस जिससे आपको मिल पाए। ओके, सो या अब इसके बाद कुछ ये 6 स्टेप्स हैं विच यू ऑल हैव टू कीप इन योर माइंड till the time of your final college admissions. इसके बाद I will start taking courses. But these 6 steps, अगर किसी बच्चे ने follow किया, despite of any stream you are having, I can give you a guarantee कि you will be having a very very successful career. But अगर इनमें से 6 में से एक भी step अगर miss किया, तो बहुत सारी problem हो जाएगी। अब इसका स्टेप 1 क्या है? एक ऐसा कोर्स चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट हो। अब जनरली देखो, करियर की जब बात आती है तो हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ता है। करियर इज नॉट लाइक अ कोर्स जो आप ऐसे रैंडम चूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप 11th में आए, अब आपको ऑप्शन था कि आप म्यूजिक चूज करो, फिजिकल एजुकेशन चूज करो, कई देयर आर मेनी बोर्ड्स जिसमें और इंडियन म्यूजिक होता है और वेस्टर्न म्यूजिक को आप चूज कर सकते हो, जहाँ पे आप फिजिकल एजुकेशन चूज करते हो, कुछ लोग इन्वायरमेंटल साइंसेस चूज करते हैं। सो देयर इज अ ह्यूज कैटेगरी जो आप चूज करते हो, लेकिन वो आप क्लास 11th में कर पाते हो बिकॉज आपको भी पता है कि आपने कई सारा सब्जेक्ट्स ले रखे हैं। अब इसमें से आप फाइनल डिसाइड कर लोगे कि आपको 12th के बाद फाइनली किस में अपना इंटरेस्ट आपको आगे लेकर जाना है। लेकिन करियर में ये ऑप्शंस बार बार नहीं मिलते। इसमें नहीं आप कई सारे रैंडम सब्जेक्ट्स चूज कर लो और रैंडम कोर्सेज चूज कर लो और फिर फाइनली डिसाइड करो कि ये कोर्स अच्छा है। कई सारे कोर्सेज करने के बाद डिसाइड करो कि ये कोर्स अच्छा है, अब इसमें अपना करियर बनाते हैं। ये नहीं होता। हमेशा करियर वो चूज करो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, जो करने का तुम्हारा मन करता है, जिसमें तुम्हें लगता है कि हाँ अगर ये कोर्स करेंगे ना तो ज्यादा मेरे लिए बेहतर होगा, मेरी पर्सनालिटी को चूज करेगा, ऐसा कोर्स चूज करो। जैसे कई बच्चे होते हैं जो मुश्किल से 2 घंटे भी पढ़ नहीं पाते डेली के। अब उस बच्चे को मैंने जबरदस्ती IAS की तैयारी में लगा दिया, और जब मुझे पता है कि वो एक ऐसे एग्जाम को देने वाला है जो इंडिया का सबसे बड़ा एग्जाम है, टफेस्ट एग्जाम है, जिसमें आपको एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की स्टडी तो डेली इज इम्पोर्टेंट।
Why? Because syllabus is like deep sea. बहुत ज्यादा सिलेबस है, तो अगर उसको पढ़ना है उसके लिए टाइम देना पड़ेगा, और वो अगर बच्चा वो कैपेबल नहीं है, तो अगर मैंने उसको कर दिया तो दो चीज होगी, उसकी एक तो टाइम वेस्ट होगा उसका, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो होगी कि उसके ईयर बहुत सारे निकल जाएंगे तैयारी में और फाइनल आउटपुट नहीं आने वाला। इसीलिए जब हम करियर को चूज करते हैं तो अपना इंटरेस्ट देखते हैं। अब अभी इस वक्त इस क्लास में दो तरह के स्टूडेंट होंगे, एक वो जिसको इंटरेस्ट पता होगा कि उसे करना क्या है, लेकिन उसको उस इंटरेस्ट से रिलेटेड करियर ऑप्शंस नहीं पता, विच इज ओके। एक वो बच्चा होगा जिसको ना तो इंटरेस्ट पता है एंड डेफिनेटली करियर ऑप्शंस तो दूर की बात है। अब इन दोनों स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट तरीका क्या है? तुम सारे करियर ऑप्शन को एक्सप्लोर करो, किसी ने मना किया है नहीं। आप अपने आप को इस चीज से रेस्ट्रिक्ट मत करो कि आप एक कॉमर्स बैकग्राउंड के हो तो हाँ आप लॉ नहीं कर सकते, या आप एक साइंस बैकग्राउंड के हो तो आप होटल मैनेजमेंट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं होता है। इट सर्टेनली डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट। अगर आपका इंटरेस्ट है तो प्लीज डू सो, लेकिन उसके पहले आपको एक्सप्लोर करना पड़ेगा, सारे ऑप्शंस एक्सप्लोर करो। अब एक बार ऑप्शन सारे एक्सप्लोर कर लिए, फिर आता है स्टेप 2 जिसमें आता है कॉलेजेस को टारगेट करो। एक बार तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारा इंटरेस्ट किस में है, एक बार तुम्हें अपना करियर पता चल गया, तो उसके बाद बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा ये पता लगाने के कि कौन कौन से कॉलेजेस में तुम्हें उस कोर्स के लिए अप्लाई करना है। एंड नेवर फिल ओनली वन फॉर्म, ये गलती हर साल बच्चे करते हैं। बोर्ड्स के बाद एक फॉर्म फिल करके बैठ जाएंगे, अब उसमें नाम आ रहा है नहीं आ रहा है, देयर विल बी अ टाइम जब पेरेंट्स को 10 जगह फोन घुमाना पड़ता है, दे हैव टू लुक आफ्टर कि अब कैसे एडमिशन होगा। तो ये सिचुएशन मत कर अपने लिए करना क्रिएट। जितना पॉसिबल है उतने अपने लिए ऑप्शंस बना के रखो। देन वी हैव स्टेप 3 जिसमें आता है फॉर्म्स को फिल करना। अब एकदम सेशन के स्टार्टिंग में मैंने बताया था आप लोग को एक चीज, वो ये बताया था कि एक सेकंड, सेशन के एकदम स्टार्टिंग में मैंने आप लोगों को एक चीज बताया था, एंड दैट वाज रिलेटेड टू a form which is already out, a notification which is already out, and that is for your college admissions in class, that is for your college admissions जो कि 2023 में होगा। आप में से कई बच्चों ने मुझे उस एग्जाम का नाम लिखा है कि आपको वो करना है, एंड मुझे पता है वो क्यों करना है, क्योंकि यार जब कॉलेज में पढ़ने की बात है तो उस कॉलेज से पढ़ना चाहिए ना जो इंडिया का सबसे बड़ा कॉलेज है उस कोर्स का। सो यस, फॉर्म्स के बारे में इसलिए पता करना जरूरी है क्योंकि क्लैट 2023 यानी जब आप नेक्स्ट ईयर के लिए, मतलब नेक्स्ट टू नेक्स्ट ईयर के लिए एडमिशंस के लिए जाओगे तो क्लैट का नोटिफिकेशन आ गया है। इवन योर एग्जाम डेट हैज आल्सो बीन डिक्लेयर्ड। 2022 में आपका एग्जाम है, यस 11th स्टूडेंट्स के लिए। तो फॉर्म्स के बारे में भी पता करना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन वी हैव एंट्रेंस टेस्ट की डेट्स पता करना। ऐसा ना हो कि पूरे साल इतनी मेहनत की, सब कुछ किया, और जब मेरी एंट्रेंस की डेट है मुझे पता ही नहीं है। तो ये जो एंट्रेंस एग्जाम है क्लैट का, इट्स इन द मंथ ऑफ दिसंबर। तो अगर मुझे यही नहीं पता होगा कि मुझे करना लॉ था, और वो भी नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी से करना था जिसके एल्यूमिनाइज आज इस वक्त हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में लॉयर जजेस की तरह बैठे हैं, और मुझे उस कॉलेज से करना था, एंड सर्टेनली सिर्फ एक गलती की मैंने ध्यान नहीं दिया, मुझे लगा बोर्ड्स के बाद प्रोसेस होता है ना, अभी क्यों ध्यान दे, और इसी वजह से मेरा एडमिशन नहीं हो पाया। तो ये हमें नहीं करना है। हमें फॉर्म्स की डेट्स पता होना चाहिए और 11 से ही पता होना चाहिए। जैसे हमें बोर्ड्स की सारी इंफॉर्मेशन होती है 11 से ही, वैसे ही क्यों ना हम बोर्ड्स के बाद वाला जो प्रोसेस है कॉलेज वाला, वो 11 से ही पता करें। फिर आता है स्टेप 5, अब उस एग्जाम के लिए अपने आप को प्रिपेयर करना। अब देखो यार, सिंपल सी बात है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे।
एंड इफ आई टॉक अबाउट अ पर्सन, जैसे कि हम अभी ओलंपिक्स हुआ था एंड वी हैव सीन दैट कितने सालों बाद, लाइक 70 इयर्स बाद इंडिया गोल्ड लेकर आया एथलेटिक्स में, सॉरी, मिस्टर नीरज लेकर आए थे हमारे लिए गोल्ड जैवलिन थ्रो में। हम सब बहुत खुश हुए, हमने स्टेटस लगाया एंड वी ऑल वर वेरी हैप्पी एंड प्राउड एट द सेम टाइम, एंड वी आर स्टिल प्राउड। बट माय पॉइंट इज व्हाई आई एम टेकिंग दिस एग्जांपल, क्या उसकी वो जर्नी, ओलंपिक्स तक के पहुंचने की जो जर्नी थी, क्या उस जर्नी के बारे में हमें पता है? उसको पता था ना कि ओलंपिक्स होने वाला है, ऐसा तो है नहीं ये एक ऐसा इवेंट था जो अनडिनाइबल था, इस साल हुआ नहीं तो अगले साल होता। तो उसको भी तो उसको आइडिया था ना कि कुछ साल बाद ये होना है। इसी वजह से उसने कांस्टेंट ट्रेनिंग किया, 10,000 घंटे की उसने ट्रेनिंग किया, एंड फाइनली वो गोल्ड लेकर आया। एंड द मोमेंट ही हैज थ्रोन द लास्ट जैवलिन, आपको वो मोमेंट याद होगा, उसने जैवलिन की तरफ देखा भी नहीं था, उसने कैमरे की तरफ और ऑडियंस की तरफ देख के क्लियरली बता दिया था कि उसकी विक्ट्री हो चुकी है। वो एटीट्यूड कैसे आया? वो एटीट्यूड प्रैक्टिस से आया, वो एटीट्यूड उस डिटर्मिनेशन से आया जो उसने कई साल दिया है। यही चीज ना हमें भी समझना है कि अगर हमें यार इंडिया के और नंबर 1 कॉलेज में पढ़ना है, या एक ऐसे कोर्स को करना है जिसके, और उस कॉलेज वो होना चाहिए जो इंडिया का अच्छे लेवल पे है, तो वहां के लिए जो जर्नी है वो 20 दिन में 10 दिन में नहीं होने वाली। और कोई अगर आपको ये बात कहता है तो उस इंसान से आप ये भी पूछो कि जब मैं 365 दिन लेता हूं एक क्लास कंप्लीट करने में, so how is it possible for me to get myself admitted in the topmost institute of India and to study the entire syllabus for my exam in that next 20 days, and I will get my admission done? And उस जर्नी में आप अकेले नहीं हो, आपके साथ 10 लाख बच्चे और होते हैं। So is it possible for someone to, achieve that goal? So इसीलिए जो आपकी प्रिपरेशन भी है वो होनी चाहिए, और अभी से इसलिए क्योंकि बेटा अभी टाइम है, बाद में नहीं होता। एंड देन फाइनली इट कम्स टू अ स्टेज जहां आप कॉलेज एडमिशन की गाइडेंस लेते हो, और ये भी बहुत जरूरी होता है क्योंकि कई बार हम छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं। जैसे इसी साल का एग्जाम्पल है, एक बच्चे ने आईआईटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया था और उसका एग्जाम इतना अच्छा हुआ था कि उसको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा था। आप सोच सकते हो कितना अच्छा हुआ, लेकिन कुछ रीजन की वजह से, और उस जिस दिन लास्ट डेट थी उस दिन उसने वो चीज नहीं की थी जो ऑलरेडी डिफाइंड था। उस रीजन की वजह से उसको आईआईटी बॉम्बे में एडमिशन नहीं मिल पा रहा। अब उसने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली है, हाई कोर्ट में डाली है, हर जगह वो लगा हुआ है कि उसको एडमिशन मिल जाए, क्योंकि उसकी मेहनत है कि उसको आईआईटी बॉम्बे मिल रहा था। लेकिन आईआईटी एक चीज पे बहुत एडमेंट है, जो प्रोसेस है वो है, सारे बच्चों के लिए एक प्रोसेस है। जब लास्ट डेट थी तो मतलब थी। वही चीज आप लोगों को भी समझनी है कि आपकी एक गलती आपकी पूरी मेहनत पे पानी फेर सकती है। वो गलती चाहे स्टेप 1 पे हो, स्टेप 2 पे हो, 3 पे हो, 4 पे हो, 5 पे हो, लेकिन वो गलती नहीं होनी चाहिए। Now let us talk about the university जो हम सब के दिमाग में रहती है, that is Delhi University. And why I'm taking this university? Because जो मेरे हिसाब से सबसे बड़ा चेंज जो यूनिवर्सिटी लेकर आई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी है। वो चेंज, आई एम नॉट सेइंग कि वो एक एग्जाम लेने वाली है नेक्स्ट ईयर, बट वो चेंज ये है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ना ऑलरेडी कुछ कोर्सेज थे, बीकॉम ऑनर्स, बीए ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, इको ऑनर्स, मैथ्स ऑनर्स, कोई भी सब्जेक्ट ऑनर्स। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास ऑलरेडी बहुत अच्छे अच्छे कोर्सेज थे। सो व्हाई इट वाज नेसेसरी, जब इको ऑनर्स बहुत अच्छा था या बीकॉम ऑनर्स बहुत अच्छा था, बीएससी ऑनर्स बहुत अच्छा है, तो why it was necessary for Delhi University to launch another set of degree courses? तो उसको ये जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि मार्केट का ट्रेंड ही इस तरफ है। यू नो व्हाई राइट नाउ जो साइंस स्टूडेंट्स हैं वो बीटेक करते हैं, बीएससी ना करना पसंद करते हैं, क्योंकि बीटेक एक प्रोफेशनल कोर्स होता है।
बीटेक एक ऐसा कोर्स होता है जिसमें पढ़ाई के साथ साथ आपको प्रैक्टिकल एक्सपोजर भी मिलता है, क्योंकि आजकल का जो मार्केट ट्रेंड है वो ये कहता है कि तुम्हें हम हायर इसलिए नहीं करेंगे कि तुम मेरे यहाँ आकर क्वेश्चन सॉल्व करो या डेफिनेशन लिखो, तुम्हें हम हायर इसलिए करेंगे कि तुम पढ़ कर आओ, मेरे यहाँ जो सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है उसके बारे में नॉलेज लेकर आओ, मेरे यहाँ जो प्रैक्टिकल चीजें होती हैं उसके बारे मतलब प्रैक्टिकली जो बिजनेस मेरा चलता है उसके बारे में नॉलेज लेकर आओ। और क्योंकि अगर आप नहीं आओगे वो नॉलेज लेके, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप ही हो, आपकी जगह 10 और लोग ऐसे होंगे जो ज्यादा से ज्यादा अच्छे कोर्सेज करके आएंगे, अच्छी नॉलेज लेकर आएंगे। सो दिस इज व्हाई दिल्ली यूनिवर्सिटी को लॉन्च करना पड़ा प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज। और मैं ये डिग्री कोर्सेज की बात कर रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी सच कोर्सेज जो कि डिप्लोमा होते हैं। प्रोफेशनल कोर्सेज लॉन्च किए, इसमें प्रैक्टिकल एक्सपोजर होता है, प्रेजेंटेशंस, इंटर्नशिप्स के थ्रू यहाँ पढ़ाई कराई जाती है। इंटर्नशिप्स का मतलब ये कि जब आप कहीं पढ़ते हो तो साथ में आप पढ़ाई के साथ साथ और जॉब करके भी देखते हो, आपको कुछ स्टाइपेंड्स मिलती है यानी सैलरी मिलती है, लेकिन जॉब से फायदा ये होता है 2 महीने की आपकी इंटर्नशिप होती है मैक्सिमम, आप सीखते हो, आप सब कुछ एक्सपीरियंस करते हो। यहाँ प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी ज्यादा अच्छी होती है, और ज्यादा अच्छी प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटी इसीलिए होती है क्योंकि अगेन कंपनी को जब दिखता है कि एक आदमी मेरे पास ऐसा आ रहा है जिसको ऑलरेडी नॉलेज है, मार्केट का एक्सपीरियंस है, तो मैं उसी को हायर करूं रादर देन मैं एक ऐसे इंसान को हायर करूं जिसको मुझे उल्टा सिखाना है सब, और एक ऐसा इंसान मिल रहा है जिसको ऑलरेडी सब आता है। तो इसी वजह से प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज लॉन्च किए दिल्ली यूनिवर्सिटी ने। एंड ऑफ कोर्स रिगार्डिंग ट्रेडिशनल कोर्सेज, वहां पे प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं होता है, वहां पे आपको जो पढ़ाई होती है वो ऑलमोस्ट सेम होती है जैसे अभी आप नॉर्मली 11th-12th में करते हैं, कि आपको सब्जेक्ट्स होते हैं, आप उसको डीप स्टडी करते हो एंड क्वेश्चन सॉल्व करते हो एंड आपको असाइनमेंट्स और होमवर्क्स मिलते हैं। लेकिन प्रोफेशनल में पढ़ाई के साथ साथ प्रॉपर एक्सपोजर मिलता है। अब इसके बाद जो ट्रेडिशनल कोर्सेज थे यानी बीकॉम ऑनर्स, इको ऑनर्स, बीएससी ऑनर्स, इन सब में देयर वाज दिस ईयर तक, इस साल तक एडमिशन वाज कंप्लीटली ऑन द बेसिस ऑफ योर क्लास 12th परसेंटेज, but from very next year it will be a combination of your 12th marks and also your performance in your entrance exam. Like I said before कि ये इसीलिए किया गया है क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल आपके 12th में 95 आते हैं या 94 आते हैं, तो 94 रिड्यूस हो जाएंगे आधे पर, और नेक्स्ट 50% ऐड होगा आपकी एंट्रेंस की परफॉर्मेंस पे। इससे फायदा क्या होगा कि ओवरऑल आपकी परसेंटाइल बढ़ जाएगी, और एक बार अच्छी परसेंटाइल आ गई तो आपको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। और इससे एक और फायदा होगा कि जैसे क्या होता है ना, बोर्ड्स में कभी कभार होता है कि यार इंग्लिश में मार्क्स कम रह गए, बाकी सारा अच्छा गया, इको अच्छा हो गया, बीएसटी अच्छा हो गया, अकाउंट्स अच्छा हो गया, किसी वजह से इंग्लिश में मार्क्स कम रह गए। अब उस बच्चे को वापस मौका तो नहीं मिलेगा ना यार बोर्ड्स देने का, लेकिन उसको एक और मौका मिल जाएगा एंट्रेंस एग्जाम में, तो वो वहां पे अच्छा कर लेगा। तो ये एक अच्छा वे है। नाउ टॉकिंग अबाउट प्रोफेशनल डिग्री कोर्सेज, because this is what is the current market scenario and requirement. So there are top 3 professional degree courses of Delhi University, और ऐसा नहीं है ये सिर्फ 3 हैं, और भी बहुत सारे हैं, मैं अभी बताती हूँ, लेकिन ये 3 कोर्सेज ऐसे हैं जिनकी वैल्यू बहुत जबरदस्त है। जैसे कि BMS है, विच इज बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज। अब ये उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जिनको एक तरफ बीकॉम ऑनर्स है जिसमें आपको पूरा अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग किया जाता है, एक तरफ BMS है जिसमें अकेडमिकली स्ट्रॉन्ग करने के साथ साथ आपको इंटर्नशिप्स के फेसेस मिलते हैं, आपको बहुत बार अपॉर्चुनिटी मिलती है कि आप प्रेजेंटेशंस दो सबके लिए, सबके सामने आप प्रेजेंटेशन दो भी, और आप प्रेजेंटेशन के थ्रू आपको पढ़ाया भी जाता है ताकि आपको ओवरऑल अच्छे से आपकी डेवलपमेंट हो।
9 कॉलेजेस दिल्ली यूनिवर्सिटी के कोर्स कराते हैं, जिसमें शहीद सुखदेव कॉलेज इज अगेन ऑन द टॉप। अब आज इस टाइम पे 100% प्लेसमेंट दे पा रहा है शहीद सुखदेव एंड अदर कॉलेजेस जो बीएमएस कराते हैं। हाईएस्ट पैकेज की बात करूं तो अभी तक का लाइक 25-20 लाख इनके पैकेज चले जाते हैं। हाईएस्ट पैकेज एवरेज इनका समवेयर अराउंड 10 लाख और 8 लाख रहता है। 60% क्लास 12th में चाहिए होता है एंड देन यू हैव टू गो थ्रू एंट्रेंस टेस्ट। इसके बाद अब देखो, खुद सोचो, इकोनॉमिक ऑनर्स ऑलरेडी था, फिर ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि बीबीई को लॉन्च करना पड़ा? जब ऑलरेडी एक अच्छा कोर्स अवेलेबल है तो इसकी क्या जरूरत थी? इसकी जरूरत इसलिए थी क्योंकि अगेन वही क्वेश्चन आता है कि प्रैक्टिकली अगर पढ़ाना है तो कुछ अलग कोर्सेज को लाना होगा, एंड दिस इज व्हाई बीबीई हैज बीन लॉन्च्ड। फिर कुछ ऐसे कोर्स के बारे में सोचा गया, क्योंकि अकाउंट्स ऑनर्स होता नहीं है दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो सोचा गया कि वो बच्चे जो सीए करना चाहते हैं, सीएस करना चाहते हैं, स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट रखते हैं, इन्वेस्टमेंट में जाना चाहते हैं, अपना करियर बनाना चाहते हैं, उनके लिए क्यों ना एक स्पेसिफिक कोर्स लाया जाए। क्यों उनका टाइम वेस्ट करें कि वो चीजें पढ़े जो उनके मतलब की नहीं है। तो लॉन्च किया गया BFIA। यहाँ पे भी 60% इन क्लास 12th एंड देन एंट्रेंस टेस्ट होता है। So these are the 3 topmost courses when it comes to professional degree courses in Delhi University. And guys, trust me, these courses are right now, they are having another level of आप ये कह सकते हो learning, another level of exposure when it comes to a course जहाँ पे आप बहुत कुछ कर सकते हो। These 3 courses are the topmost courses. अब एक सिनेरियो समझो कि आप एक सीए बन गए और आपके साथ वाला भी एक और है जो सीए बन गया है। दोनों ने एक कंपनी में अप्लाई किया। एक आप सीए हो जिसने सिर्फ सीए कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखी थी XYZ कॉलेज से। एक और आपके साथ वाला सीए है जिसने ग्रेजुएशन कर रखी है BFIA कोर्स के साथ। तो जब कंपनी में आपने अप्लाई किया, आपका रेज्यूम जो सबसे पहले देखा जाता है, उसमें आपकी स्क्रीनिंग हुई। स्क्रीनिंग में ये पता चला कि इस वाले के पास एक एडेड एडवांटेज है, उसने ग्रेजुएशन में एक ऐसा कोर्स कर रखा है जिसमें इसने काफी नॉलेज ले रखी है, बिजनेस की, ऑर्गेनाइजेशन की, फिनेंसेस की, इन्वेस्टमेंट की। तो हमेशा एक्स्ट्रा एज होगी उस बच्चे के पास जो कि साथ में होगा, जिसके पास ज्यादा डिग्री होगी। सो यस, दिस इज इंपॉर्टेंट। Okay, the name of colleges, like 9 colleges BMS कराते हैं, 10 colleges BBE कराते हैं, 2 colleges BFIA कराते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। I will give you the list also. Yes, entrance will be there. And एक बच्चे का अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको अभी बताती हूँ, बस एक सेकंड। ऐसा कुछ नहीं है यार, नॉन मैथ्स के पास बहुत ऑप्शन होते हैं। एक बहुत बड़ा ऑप्शन इसके बाद ही मैं बताने जा रही हूँ, दैट इज फॉर मैथ्स, नॉन मैथ्स, साइंस, कॉमर्स, ह्यूमैनिटी, डजंट मैटर यू आर फ्रॉम विच स्ट्रीम। अंडरस्टैंड, वो कोर्स एक ऐसा कोर्स है जिसकी वजह से ही आज हर यूनिवर्सिटी को, दिल्ली यूनिवर्सिटी तक को और BMS कोर्स लॉन्च करना पड़ा बैक इन द इयर्स ऑफ 70s। और ये जरूरत इसीलिए पड़ी क्योंकि उस पार्टिकुलर कॉलेज ने एक ऐसा कोर्स लॉन्च कर दिया था जिसने पूरी धमाल मचा दी। मतलब दिस इज द करेक्ट वर्ड आई शुड यूज, जिसने पूरा सिनेरियो चेंज कर दिया। अब वो कॉलेज क्या है, आई गेस आप सबको पता होगा उस कॉलेज के बारे में, मतलब नाम सुना होगा कॉलेज का, एंड दैट इज IIM। स्टूडेंट पासिंग फ्रॉम IIT, उसको भी IIM से MBA करना होता है। SRCC से पास हो रहा है, उसको भी IIM से MBA करना होता है। तो अब एक चीज तो दिमाग में क्लियर रखो कि अगर IIT वाला बच्चा भी IIM से MBA कर रहा है और SRCC वाला बच्चा भी और IIM से MBA कर रहा है, तो इसका मतलब स्ट्रीम का कोई यहाँ रोल नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक चीज का रोल है कि तुम्हें ज्यादा लर्निंग मिलेगी, ज्यादा एक्सपोजर मिल जाएगा। सो दिस पार्टिकुलर IIM, जब इसने देखा कि दिल्ली यूनिवर्सिटी
इन्हीं से इंस्पायर होके BMS, BB, BFIA जैसा कोर्सेज लॉन्च कर सकती है आफ्टर क्लास 12th. So why should I be at a place जहां मैं सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाऊं? तो इन्होंने एक कोर्स लॉन्च किया and that is after class 12th. This course is with this name IPM. And I was really happy to see in this class at the starting when I asked this question कि किसको क्या करना है 12th के बाद, मैं इतनी खुश थी क्योंकि around 8 students ने clearly specify किया था IIM and IPM, I mean this course. And I am so happy. Why? Because अगेन वो 8 स्टूडेंट्स ने पहले ही अपनी जर्नी अलग कर ली थी उन 80% स्टूडेंट से जो हर साल एक ही प्रोसेस फॉलो करते. IPM ये कोर्स लॉन्च हुआ एंड अगेन एक ऐसे कॉलेज से लॉन्च हुआ जिस कॉलेज के इस वक्त मैक्सिमम CEO, CFOs, फाउंडर्स और मे बी लाइक जो आई मीन कंपनी के जो ओनर्स हैं, दे आर द एल्यूमिनाइज ऑफ IIM. Talking about Make My Trip, OYO, if you have heard about Naukri.com, if you have heard about Flipkart, Byju's, Upgrad, take any company, any startup which has been turned into a company and earning like millions, or they are like giving profit to the Indian economy. So basically people are those who are at some good place as in CEO, CFOs, they are from IIM. And to study in this college after class 12th, what is required is 60% in 12th. Then you go through the process of entrance and then interview. अब एक चीज देखो, हर जगह एंट्रेंस इसीलिए होता है क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि एक अच्छा स्टूडेंट विद अ गुड IQ, उसको भी तो मौका मिलना चाहिए यार इंडिया के अच्छे कॉलेजेस में पढ़े. इसी वजह से एंट्रेंस प्रोसेस रखा जाता है. IIM Indore is the one, and then we have IIM Rohtak, IIM Ranchi, IIM Jammu, IIM Bodh Gaya. अब एक ऐसे कॉलेज में पढ़ना जो इंडिया की सबसे जबरदस्त प्लेसमेंट देता है. अभी तक ऐसा दिमाग में होगा ना कि IIT अच्छी प्लेसमेंट देता है, बट अभी तक की इंडिया की सबसे अच्छी प्लेसमेंट वाज गिवन बाय IIM. एंड ऑफ कोर्स टू अ स्टूडेंट जो कि ग्रेजुएशन में जिसने अच्छा किया था, उसके बाद वो पोस्ट ग्रेजुएशन में और जब IIM में पढ़ा तो प्लेसमेंट उसको अच्छी मिली. लेकिन इस IIM में आई मीन ये कोर्स इसीलिए लॉन्च किया गया कि वो लंबा प्रोसेस खत्म करो. अब डायरेक्टली तुम क्लास 12th के बाद और एक एडमिशन ले लो ताकि तुम ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों कर पाओ. इससे आपको फायदा ही मिला उल्टा. वो जो लंबा प्रोसेस नहीं होता था, पहले UG करो, पहले UG के लिए मेहनत करो, फिर UG में एडमिशन लो, फिर तुम PG के लिए मेहनत करो, फिर PG में एडमिशन लो. अब एक बार मेहनत और तुम डायरेक्ट एक ऐसे कॉलेज में चले जाओगे, पहले तो जिसकी वैल्यू जबरदस्त है. ये वो कॉलेज है जिसके फीचर्स मैंने स्टार्टिंग में बताए थे. फिर उसके बाद तुम्हें पोस्ट ग्रेजुएशन में फिर से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी. तुम 22 साल की उम्र में जब बाहर निकलोगे ये कोर्स करके, 22 साल या 23 साल की उम्र में, तो तुम्हारा एक जो लेवल है वो अलग होगा. तुम्हारे पास एक ब्रांड होगा IIM के नाम से. एंड ट्रस्ट मी, घर में कभी पूछना किसी से, लाइक दोज पीपल हु आर फ्रॉम IIMs और दोज who are not from IIMs, they must know the importance of this college, that is IIM. एंड ये कोर्स और पिछले कोर्सेज बताने का यही रीजन है क्योंकि बाकी सारे कोर्सेज तो हमें पता है ना यार, जो नहीं पता है वो जानना इज इम्पोर्टेंट. और उस जर्नी तक कैसे पहुंचना है वो भी मैंने आपको क्लियर किया. अब इसके बाद कई और चीजें आती हैं, जैसे मुझे पता है आप में से कई बच्चों को फॉर एग्जाम्पल लॉ में इंटरेस्ट है. तो अब लॉ के लिए आप जो सबसे बड़ा एग्जाम होता है दैट इज CLAT फॉर ऑल NLUs. उसके बाद होता है IELTS which is for NLU Delhi. अब इन सब में एडमिशन के लिए आपको चाहिए होता है 50% इन क्लास 12th और आप उसके बाद एंट्रेंस टेस्ट देते हो. देन वी हैव होटल मैनेजमेंट के टॉप कॉलेजेस आर IHMs. अगेन
कुछ चीजें आपके कॉलेज पे भी डिपेंड करती है। अब लोग होटल मैनेजमेंट को उतना अच्छे से नहीं देखते, बोलते हैं ये क्या कोर्स है, कोई कोर्स होता है, क्योंकि हमारे इंडिया में थोड़ा सा ये मेंटालिटी होती है कि अनलेस वी आर नॉट स्टडिंग कोर्सेज जो कि बहुत एकेडमिकली साउंड हो, हमारी वैल्यू नहीं होती। ऐसा नहीं है। जस्ट थिंक अबाउट अ पर्सन लाइक संजीव कपूर, ही इज अ पास आउटर, ही इज अ एल्यूमिनाई ऑफ IHM Pusa, which is the #1 college for hotel management, and IHM Pusa is in Delhi, so you guys are again lucky. Just like NLU Delhi, IHM Pusa is also there. अब IHMs के लिए भी what you need 50% in your class 12th, and then you have to go through the entrance test का process. Again, there must be a students जिनको fashion designing करना है। फैशन डिजाइनिंग वालों के लिए भी एक अलर्ट है, सबसे पहले जो फॉर्म आउट होता है दैट इज फॉर फैशन डिजाइनिंग। तो आप जब सितंबर अक्टूबर में दूसरी वर्ल्ड में होते हो, कॉलेज की तरफ ध्यान नहीं देते हो, तभी आपका ये फॉर्म आउट होता है। और सबसे पहला जो एंट्रेंस एग्जाम होता है वो फैशन डिजाइनिंग का होता है। उसके बाद अब अगले साल से तो लॉ भी आ गया आपकी रेस में, अब लॉ भी आप ही की तरह हो गया है, जल्दी जल्दी एग्जाम्स कराते हैं। उसके बाद आता है लॉ है, होटल मैनेजमेंट है, फैशन डिजाइनिंग है, आपको कंप्यूटर्स में जाना है, देयर आर कोर्सेज रिलेटेड टू कंप्यूटर्स, एंड ऑफ कोर्स साइंस स्टूडेंट्स के लिए बीटेक होता है। अब साइंस स्टूडेंट्स को भी मेरी एक रिक्वेस्ट है कि डू नॉट स्टिक योरसेल्फ विद दिस ओनली वन कोर्स दैट इज बीटेक और मे बी मेडिकल्स। Even if you are interested in engineering, there are other options as well. आप physical sciences में जा सकते हो, you can go through IISER, आप एग्जाम दो, आप पायलट्स बन सकते हो, कमर्शियल पायलट्स में जा सकते हो। अगर फैशन डिजाइनिंग करनी है तो विदाउट निफ्ट नाम सुना होगा, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी, ये वही बच्चे करते हैं क्योंकि जिनका जो साइंस बैकग्राउंड से होते हैं, निफ्ट वाले करते हैं, साइंस बैकग्राउंड वाले भी करते हैं। सो व्हाट आई मेंट इज कि ऐसा नहीं है, यू शुड स्टिक योरसेल्फ टू ओनली वन कोर्स दैट इज इंजीनियरिंग, that is not important. You can do anything. There was a time, maybe मेरे टाइम पे ऐसा होता था कि साइंस लिया है तो ये करना है, ये लिया है तो वो करना है, बट अब ऐसा नहीं है। अब आप कोई भी कोर्स कर सकते हो और बस आपका इंटरेस्ट होना चाहिए उस पार्टिकुलर कोर्स में। Then again we have mass communication. There are कोर्सेज इन इंडिया जहां से आप मासेस के साथ कम्युनिकेट करते हो। अब मासेस के साथ कम्युनिकेट करना मतलब आप डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स का यूज करते हो, या आप प्रिंट मीडिया में जाते हो, आप डिजिटल मीडिया में जाते हो, आपका इंटरेस्ट है। अब अगर प्रिंट मीडिया में जाना है तो आपको जर्नलिस्ट, राइटर जर्नलिस्ट होना पड़ेगा, फोटो जर्नलिज्म है, आप वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी, आप मतलब डिजिटल मीडिया के थ्रू जा सकते हो, OTT प्लेटफॉर्म्स है, टेलीविजन है, इवेंट मीडिया है, इवेंट मैनेजमेंट है, इंटीरियर डिजाइनिंग है। अब इतने सारे कोर्सेज होते हैं और इन कोर्सेज की इंफॉर्मेशन लेना इज वेरी इंपॉर्टेंट, especially in class 11 guys. Do not keep this thing process जो आप बाद में करो, ये अभी करना is very very important. Abhi, I can see a lot of you are just one second. अब होता ये है जनरली, लाइक अभी भी मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सारा इंफॉर्मेशन, सारी नॉलेज आपको दूं, लेकिन ऐसा होता है कई बार कि चीजें स्किप इसलिए हो जाती हैं क्योंकि इंटरेक्शन काफी लिमिटेड रहता है। और जनरली मेरे इंटरेक्शन के बाद ही जब खाली दिमाग से कहीं बैठते हो तब रियलाइज होता है कि यार ये भी चीज थी, मैम से पूछ लेते शायद, और एक बच्चे ने मुझसे ऊपर मांगा भी है। तो मैं अभी आप सबके साथ आई एम शेयरिंग यू माई नंबर and you can save my number. My name is Aditi Sharma and this is my phone number. I am not ending this webinar. I am just talking about the courses. I am just taking your doubts. Okay. So beta, how many students gave exam in IHM Pusa? This should not be a question. Question should be how many students give exam for
IHM का खुद का एक अलग एग्जाम होता है। 21 IHM होते हैं इंडिया में। उन 21 IHMs के लिए एक कॉमन एंट्रेंस एग्जाम होता है, उसका नाम है NCHMCT। ये एग्जाम वो 21 IHMs के लिए बच्चे देते हैं। उनकी रैंक आती है, रैंक के अकॉर्डिंग उनको टॉप कॉलेज, सेकंड टॉप कॉलेज, थर्ड बेस्ट कॉलेज, फोर्थ बेस्ट कॉलेज ऐसे मिलता है। ठीक है, ओके। Beta, in case if you are very clear, so start your journey for IIM. Because I know many students, those who have already started their journey from IIM from their class 11 starting. So they are already little bit ahead in your race. So you have to start it as soon as possible. Okay, so there is a student who is saying to be a teacher. तो दिल्ली यूनिवर्सिटी जैसे कि BMS, BB, BFI जैसे कोर्सेज लॉन्च किए, तो DU ने सोचा कि नॉर्मली जो अगर हम 10th क्लास तक के टीचर बनते हैं, या मतलब जब हम स्कूल में एज अ टीचर होते हैं, तो एक प्रोसेस हमें फॉलो करना होता है, दैट इज ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, एंड फिर उसके बाद B.Ed करते हो, एंड उसके बाद आपका इंटरेस्ट है, कुछ PhD भी करते हैं, कुछ PGT करते हैं, देन फाइनली आप टीचर बनते हो। तो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने सोचा कि एक कोर्स लॉन्च करते हैं जबरदस्त सा, कि 12th के बाद बच्चा वो करे और 4 साल में उसको हम टीचर बनाते हैं। तो उसने एक कोर्स लॉन्च किया जिसका नाम है डिग्री कोर्स, BLEd, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन। ये कोर्स उसने लॉन्च किया। 12th के बाद आप करते हो। प्रोसेस एडमिशन की क्या है, 50% चाहिए क्लास 12th में, देन एंट्रेंस टेस्ट। कॉलेजेस कौन कौन से मिलते हैं, LSR, मिरांडा, जीजीएस एंड मेरी। इन कॉलेजेस में नॉर्मली एडमिशन लेने जाओ तो यार जर्नी टफ हो जाएगी। LSR की कट ऑफ इस बार 100% गई है, बट देयर आर स्टूडेंट्स जो BLEd के थ्रू वहां चले गए, जो 50% पे पढ़ रहे हैं LSR में। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द गुड कोर्सेज फॉर IPM। like before CAT, I mean IPM is a course जिसमें ऑलरेडी PG मिला हुआ है, उसके लिए आपको अलग से CAT देने की जरूरत नहीं है। IPM में एडमिशन हो गया तो तुम्हें CAT वेट की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का डिग्री मिलेगी। जब भी कभी वर्ड सुनो ना, ओके, ओह शिट, ओके, मैं आई थिंक पूरा सेशन एंड होने वाला है, PPT मेरी चली नहीं, बट आई थिंक काफी सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। बट मैं फिर से आपको एक बार PPT ओपन करती हूँ, दिखाने में। ओके, सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दिस पर्टिकुलर कॉलेज, दैट इज IIM, एंड IIM इंदौर बताया था मैंने, रोहतक, जम्मू, रांची, बोधगया, ये कॉलेजेस बताए थे। अब मैं आपकी एक बच्चे का क्वेश्चन है कि एंट्रेंस एग्जाम IIM के लिए इज IPM, बेस्ट कॉलेज फॉर लॉ इज नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी विच इज इन दिल्ली, या फिर नेशनल लॉ स्कूल विच इज इन which is not, I mean, which is exactly 19 in numbers. Total 19 law colleges हैं, national law schools हैं. Okay, you have interest in computer science, you have two options. Either go for BTech CS or you can go for BCA also. If you have interest in banking course, just one second. If you have interest in banking course, then you should always, I mean, you have an option of BBA banking and investment. वो कर सकते हो, जो आपको ग्रेजुएशन में ही और करवाएगा। You are from science background, if you are not from science background, doesn't matter, fashion टेक्नोलॉजी और फैशन डिजाइनिंग में आप आराम से जा सकते हो। उसके लिए आपको एंट्रेंस देना होता है, और एंट्रेंस होता है GAT के नाम से, जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट, जिसमें एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और लास्ट में एक आपका ड्राइंग रिलेटेड एग्जाम होता है। वो 2 एग्जाम के बाद आप
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन और फैशन में जा सकते हो। LSR डजंट टीच लॉ। लॉ के अच्छे कॉलेजेस आर नेशनल स्कूल्स। देयर आर कोर्सेज जो BSc करवाते हैं, स्पेशली इन कंप्यूटर साइंस, यू कैन डू दैट, राइट, थ्योरी एंड सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन, करेक्ट। ओके, जस्ट 1 मिनट देना ताकि मैं आप सबको स्लाइड शो कर सकूं और फिर आप उसके अकॉर्डिंग स्क्रीनशॉट्स ले लो। जस्ट 1 मिनट। I don't know how it happened. Okay. Yes, there is this course, people applying for UPSC, they are targeting law in their graduation. Okay, so just 1 second. These are the 3 courses which I have explained, that is BMS, BB and BFIA. You can take a screenshot of it, of Delhi University. Once you have taken a screenshot, I will switch to the next slide for IM also. So this is the course of IM जो आप class 12 के बाद करते हो, जिसमें आपको ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों का रहता है। Yes, PPT is on IM. PPT is on IM and IPM, right? इसके बाद इसके पहले वाली PPT, is it visible? Delhi University, DU JAT. Okay, just 1 second. I don't know आज क्या प्रॉब्लम आ रही है। Just 1 second. हाँ ठीक है मैं समझ गई, not visible. Just 1 second. Okay. Understood. Okay. अब it is visible. 1 second. Yes, ma'am, it's visible now. Delhi University. Okay, ma'am. Thank you so much. Yeah, so these are the 3 courses जिसमें BMS, BB and BFIA को मैं explain कर रहा उस time. And then we have IM का तो screenshot ले लिया होगा क्योंकि काफी ज्यादा बार वो आपको visible हो गया. And this is this one. Okay. 8130790093. मैंने फिर से सेंड कर दिया बेटा, आप चेक कर लेना, फोन नंबर आप बोल रहे थे। मेडिकल स्टूडेंट कैन बिकम अ पायलट। इस जर्नी में अगर आपके पास फिजिक्स है तो आप पायलट बन सकते हो, एब्सोल्युटली। आप साइकोलॉजी ऑनर्स कर सकते हो बेटा, and that can be from Delhi University, and you have a very good college for psychology, that is LSR. For mass communication, if you want to go with mass communication, the criteria generally for any courses in mass especially in Delhi University, तो DU में जैसे कि ये 3 courses अभी आपको दिख रहे हैं, BMS, BB and BFIA, जैसा एक BLED के लिए मैंने बताया, वैसे ही एक मास कॉम का एक कोर्स होता है BMMC, which is Bachelor of Multimedia and Mass Communication. This is a course जो पूरे इंडिया में सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी कराती है। खास बात यह है कि इस कोर्स में पेन एंड पेपर का यूज नहीं होता, इट्स कंप्लीटली डिजिटल कोर्स, कंप्लीटली डिजिटल कोर्स, पूरा का पूरा इज बेस्ड ऑन दी learning from different platforms digitally. इस कोर्स में एडमिशन के लिए 75% चाहिए क्लास 12th में, इंग्लिश में 85% चाहिए, उसके बाद आप एंट्रेंस टेस्ट क्लियर करते हो। इस कोर्स को करने के लिए दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक और अच्छी बात है, अच्छी बात कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, अच्छी बात ये है कि दिस इज ओनली फॉर गर्ल्स, नॉट फॉर बॉयज।
For boys, if you want to go for mass comm or journalism, there is another course which is integrated course in journalism. ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी कराता है. 50% चाहिए क्लास 12th में, and उसके बाद आप फाइंड करते. No, IIM Lucknow doesn't provide IPM. So better option is CA or BFIA. Okay. फाइन, चलो ठीक है. यूजुअली जब ऐसा होता है, आई मीन मैं कोशिश करती हूँ कि मैं संडेज को भी थोड़ा बहुत इंटरेक्शन कर लूँ. तो इन केस अगर आपके बहुत सारे डाउट्स अभी बच गए हैं तो यू हैव माय नंबर, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट मी. आई विल हेल्प यू विद ऑल योर डाउट्स. आई विल क्लियर ऑल योर डाउट्स. एंड इसी के साथ आई जस्ट सॉ दैट आई हैव टेकन 8 minutes ahead of the time. So yeah guys, हम इंटरैक्ट करते रहेंगे. बस मेक श्योर करना है कि सारे डाउट्स अभी क्लियर करने हैं 11th में. हम इसको बाद में 12th के लिए नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि अगर 12th के लिए छोड़ दिया तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. ठीक है, तो यस, ओके. In case if your cousin is having difficulty or anyone, I am always available, guys. You can always connect with me. I will help you to help you in any sort of difficulties. So thank you so much, everyone, and thanks a lot, ma'am, for bearing with me, and especially the time when I haven't realized that PPT nahi show ho pai. And but I guess जो बाकी चीजें हैं इनको समझ में आ गई होगी. And thank you so much, everyone. Thank you. And I can see everyone sharing bouquet and smileys. Thank you. Thanks a lot, everyone. And thank you so much, ma'am. Hello, everyone. It's such an honor for me to extend thanks on the occasion of an extremely enlightening career awareness session by Ms. Aditi Sharma, the Senior Counselor at EduMentor. On behalf of my school and the entire management group here, I express my hearty gratitude to our distinguished guest for sharing her graceful words with us in today's session. Thank you, ma'am, for inspiring and encouraging a student with your precious words. I'm sure that our school will continue to get significant provision from you in the future as well. Thank you so much, ma'am. And thanks a lot. Thank you, everyone, for listening to me for a longer time. So, yeah, ma'am, thank you so much, everyone. Thanks. Thank you, ma'am. Thank you.